مسیح کے قادر، جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک مرتبہ پھر فضل بخشا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں خداوند کی میٹھی شیرین باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ یہ کلام جو دو دھاری تلوار ہے اور بند اور گدے گدے سے ہو کر گزر جاتا ہے، یہ کلام ہمارے روح کی غذا ہے۔ جب ہم اس کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں تو روحانی قوت پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے حکمت اور دانائی مانگیں گے، کیونکہ اس کی حکمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قدوس یہوہ پاک خدا، لشکروں کے خداوند، جلالی پتا، مہربان باپ، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے فضل بخشا کہ آپ کے کلام کو دوسروں زندگیوں تک پہنچایا جا سکے۔ جتنے بہن بھائی بچے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے خداوند، ان کے لیے میں تیری حکمت، دانائی اور خرد کو مانگتی ہوں پیارے یسوع جی، تاکہ جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو رب الافاق 100 کا 100 گنا پھل لائے، لے چھو اور بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگو پا لیتی آپ کا پاک و پوتر نام لے کے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید پینتیکوست قریب ہے، تو آج ہمارے ٹاپک بھی ہے روح کی رہنمائی میں کیسے چلا جائے، ہاؤ ٹو بی لیڈ بائی دا اسپرٹ۔ جس طرح 120 کی جماعت میں روح القدس نازل ہوا، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی وہ دعا میں جھکے ہوئے تھے اور انہوں نے خداوند سے اپنے لیے روح القدس کو مانگا، روح القدس کی رہنمائی کو مانگا، تو خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ تو آئے ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم روح کی رہنمائی میں کیسے چل سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب، اس کی ہم 7 سے لے کے 8 آیت تک پڑھیں گے اور پھر 12 سے لے کے 15 آیت تک اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ 12 آیت سے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم آج اس پہ غور کرتے ہیں کہ خداوند اپنے شاگردوں سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور یوئیل نبی کی یہ پیشن گوئی روح القدس کے بارے میں 850 سال پہلے کی گئی تھی، اور
यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरा जुदा होना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना रूह कुद्दस ना आएगा। क्योंकि यीशु जाता और फिर उसने रूह कुद्दस को हमारे लिए मददगार के तौर पर भेजना है। रूह कुद्दस की रफ़ाकत में हमें ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, और खुदावंद का वादा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। हालेलुया। खुदावंद इंसान से देखे कितना प्यार करता है कि उसकी सूरत को अपनी हथेली पे बनाया हुआ है, और इतना प्यार करता है कि हमारे लिए मददगार भेजा ताकि हम अकेले ना हों। वो हमारी हर मुश्किल में हमें सच्चाई के रास्ते पर लेके चले, क्योंकि खुदावंद पाक है और वो देख नहीं सकता। रूह कुद्दस के वसीले से यीशु हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहता है। इसलिए तवक्को करते हैं कि रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करे, और रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई भी करता है। रूह कुद्दस जाहिर करता है कि उसका पहला जो काम है हमारी रहनुमाई करना है, ताकि हम पाक और खुदा के ताबेदार हों और उसके हुक्मों पर अमल बरदार रहें, उसके हुक्मों को माने। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो खुदावंद को पसंद आते हैं। इसलिए ज़मीन पर पाकीज़गी यानी खुदा के लिए मंसूबे की तकमील रूह कुद्दस की रहनुमाई में हो सकती है, क्योंकि रूह कुद्दस जब हमारे अंदर होगा तो हम हर उस बुराई से बचेंगे। रूह कुद्दस जब हमारे अंदर होता है तो बंधन जुए टूटते हैं। इब्लीस जो हमारी रुकावटें डालता है, रूह कुद्दस उस रुकावटों को दूर करता है। रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई जब करता है तो हम बहुत सी मुश्किलात से बच जाते हैं, और हमें ऐसे रास्ते पे लेके चलता है जो सच्चाई की राह की तरफ जाता है। इसके साथ साथ पाक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पाक होते हैं तभी रूह कुद्दस हमारे अंदर काम करता है। रूह कुद्दस हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी रहनुमाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोया के वसीले से, नबूवत के वसीले से, कलाम के ज़रिए से, और ज़्यादातर रूह कुद्दस हमारे रूह के साथ ख्यालात तसव्वुरात के ज़रिए हमसे मुखातिब होता है। अगर रूह कुद्दस कुछ करना चाहता है तो वो हमारे रूह को मुतहरिक करता है, तो हम जान जाते हैं कि रूह हमसे कोई ख़ास काम लेना चाहता है। हम अपने रूह की आवाज़ को ज़मीर कहते हैं। जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमारा ज़मीर हमें अंदर से मलामत करता है कि ये काम गलत है, इसको नहीं करना, ये काम करने से हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें पाकीज़गी को अपनाना है। इसलिए हमें पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पाक होंगे तो तभी रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करेगा। रूह कुद्दस हमारी मुख्तलिफ तरीक़ों से रहनुमाई करता है, जैसे रोया के वसीले से, ख्वाब के वसीले से, नबूवत के वसीले से, और रूह कुद्दस की आवाज़ के वसीले से। और खुदा की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। ज़्यादातर रूह कुद्दस हमारी रूह के साथ ख्यालात या तसव्वुरात के ज़रिए मुखातिब होता है। अगर रूह कुद्दस कुछ करना चाहता है तो वो हमारी रूह को मुतहरिक करता है, तो हम जान जाते हैं कि वो हमारी किस ख़ास सिमत में हमें ले जाना चाहता है।
हम अपने रूह की आवाज को ज़मीर कहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम कोई गलत काम करना चाहते हैं या हमारे मुंह से गलत कोई अल्फाज निकलते हैं तो हमारे ज़मीर हमें मलामत करता है कि इस तरह नहीं करना, क्योंकि इस तरह बोलने से या गलत काम करने से हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। रूह कुद्दस हमें सच्चाई पर चलना सिखाता है। हालेलुया। रूह कुद्दस हमें बहुत सी बुराइयों से बचाता है। जब रूह कुद्दस हमारे अंदर होगा तो तमाम बंधन जुए टूट जाएंगे। रूह कुद्दस हमें अबलीस के साथ मुकाबला करने की कुव्वत देता है। यीशु मसीह ने इसीलिए हमारे लिए मददगार भेजा ताकि हम उसकी रहनुमाई में चलने वाले बने। और रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई भी करता है। जब हम पाक होंगे तो रूह कुद्दस भी हमारे साथ साथ होगा। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें इस चीज़ पे गौर करना है कि कहाँ पे गलती है और कहाँ से हमने इस गलती को ख़त्म करना है। और हमने अपने दिलों में दुआ करनी है, रोज़े और दुआ में ठहरना है और खुदावन से मांगना है कि खुदावन तो अपने रूह को हम पे उंडेल, ताकि हम रूह का बपतिस्मा लेने वाले बने। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत। आमीन।